قافلہ کربلا سے چل چکا ہے۔ یہ قافلہ کوفہ سے گزر چکا ہے، گزر کر شام کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی سفر کو پہنچے گا شام۔ سب سے لمبا راستہ بھی یہی ہے۔ کربلا سے کوفہ کا راستہ تقریباً 3 دنوں میں سر ہوا ہے، مگر کوفہ سے شام 15 محرم سے پہلی سفر، 15 دن کا سفر ہے۔ آپ 3 دن چلتے ہیں نا نجف سے کربلا تک، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر جگہ جگہ دکھتے ہیں تو استراحت کر لیتا ہوں۔ جب آپ مشی کر رہے ہوں نجف سے کربلا کی تو اس وقت سوچا کریں کہ سکینہ کیسے چلی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ 3 سالہ امام محمد باقر کیسے چلے ہوں گے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، آج کی مجلس مخصوص مجلس ہے۔ ایک ایسے امام کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ۔ میں کہوں گا رونے والوں سے تابوت کو بوسہ دیتے وقت خیال رہے کہ زخمی امام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ کوفہ سے بھی گزرا ہے اور یہ قافلہ شام تک بھی پہنچا ہے۔ شام اور کوفہ میں فرق ہے۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، مگر سنیں گے شام میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جسے رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، کچھ دیر تصور تو کیجئے۔ شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی ہیں، رقص اور طرب کی آوازیں سنی۔ تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیویاں ہیں جو بے مقنع و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے،
और उन्हें ऐसे खींचा जा रहा है। मुझे तवज्जो हुई कि एक शख्स है जो आगे आगे चल रहा है, उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, खारदार तोक उसके गले में डला हुआ है। मैं उसके करीब गया और मैंने कहा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हें ऐसे मारा गया और आज तुम्हें ऐसे असीर बना के लाया गया है? तो उन्होंने अपनी गर्दन उठाई और मुझे देखकर कहा, तुम तो इब्ने उतैबा हो, तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये कौन है जो मेरे नाम से मुझे जानता है? मैंने कहा, आप कौन है? कहा, मैं अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हूं। इब्ने उतैबा कहता है कि मैंने मौला के कदमों में बैठ के कहा, मौला ये क्या बाज रहा है? फरमाए इब्ने उतैबा, ये जो नौ के नेजा पे सर है ये मेरे बाबा हुसैन का सर है। इब्ने उतैबा, वो मेरे भाई अली अकबर का सर है, वो मेरे चचा का सर है, वो कासिम का सर है। और मुड़कर ना देखना, ये बगैर चादरों की बीबियां, इनमें मेरी फूफी ज़ैनब है, मेरी माँ रबाब है, मेरी माँ उम्मे लैला है, मेरी बहनें हैं, मेरी सकीना है। इब्ने उतैबा कहता है कि मैंने मौला से कहा, मौला हुक्म करे, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? अल्लाह किसी अमीर तरीन फर्द को यह दिन न दिखाए कि वो किसी से कोई चीज सवाल करे। मेरे मौला ने फरमाया, बता तेरी जेब में पैसे कितने हैं? अजीब रिवायत है, बता तेरी जेब में पैसे कितने? का मौला 2000 दिरहम है। मौला ने फरमाया, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इब्ने उतैबा, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। इब्ने उतैबा कहता है, मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। मौला ने फरमाया, बीबियों को जाके दे दो। मैंने बीबियों को चादरें दी, हर एक बीबी के सर पे चादर आ गई। अजब नहीं, कुछ लम्हे के लिए बीबियों ने एक सुकून का सांस लिया हो कि एक मर्तबा कुछ नेजा बरदार जालिम आए। अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिए, बयान नहीं हो सकता। फिर एक मर्तबा नौहा बुलंद हुआ, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। इब्ने उतैबा इमाम सज्जाद की खिदमत में आके कहता है, मौला बताइए कोई और हुक्म मेरे लिए फरमाए। मेरे मौला ने फरमाया, इब्ने उतैबा, ये तुम्हारे पास जो रकम बची है, ये जो नेज़ों को उठाए हुए जालिम हैं, इनसे कहो कि सरों को आगे ले जाओ और अगर कोई इनाम मांगे तो उसे इनाम दे देना। कहा, मौला इससे क्या होगा? फरमाने लगे, लोग सरों का तमाशा देखने आगे चले जाएंगे। ये जो भीड़ है जिसमें मेरी बहनें चल रही हैं। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, आप अपने घर की माँ बहनों से कहते हैं ना, फला बाजार में न जाना, वहां रश बहुत होता है, फला मार्केट में न जाना, वहां खवे से खवा चलता है। सैदानियों का काम नहीं है ऐसे बाजारों में जाना। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, इब्ने उतैबा, जब ये सरों को लेके आगे चले जाएंगे तो तमाशा देखने वाले आगे चले जाएंगे। मेरी फूफी के गिर्द से हल्का तंग हो रहा है, मेरी माँ बहनों के करीब मजमा बढ़ रहा है, इन्हें दूर करो। इब्ने उतैबा कहता है, मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ आगे गए, कुछ कहने पे आगे चले गए। इसी असना में मैंने एक शख्स को देखा जिसकी झोली में पत्थर थे और वो पत्थर मार रहा था। तो उस शख्स ने इमाम हुसैन की पेशानी में पत्थर मारा। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने तलवार निकाल ली। इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्ने उतैबा तलवार न चलाना, तुमने एक पत्थर देखा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार शाम में जाने दो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। आज की मजलिस इमाम हुसैन के पहले अज़ादार की मजलिस है। हक बनता है कि ऐसे गिरिया किया जाए जिसने सन 61 हिजरी से 95 हिजरी तक तकरीबन 34 साल तक गिरिया किया हो। मेरे रो रहे ना हज़रात, मेरे इमाम की आंखों का पानी खत्म हो गया था,
खून निकलता था आंखों से। जब कभी पानी आ जाता था ना, अभी आप सबील भी पीते हैं ना, जुलूसों में सबीलें भी लगी हुई हैं, जब इमाम के सामने पानी आता था तो पानी को देख के पहले रोते थे। कनीज से पानी मंगाया, गुलाम से पानी मंगवाया, जब पानी आया इमाम के सामने तो रोने लगे। कनीज और गुलाम इमाम को पुरसा देते थे। इमाम फरमाते थे, जब मैं पानी देखता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आता है जब मेरे बाबा भैया अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जब कभी खाना आ जाता था तो इमाम सज्जाद खाने को देख के रोते थे। फरमाते थे, वो कुमलाए हुए चेहरे मुझे याद आ रहे हैं। मेरी फूफी ज़ैनब से मैंने पूछा, फूफी अम्मा आप आलिम है गैर मौलिमा है, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन जो खाना होता है वो इतना कम होता है कि मैं खाना अपने हिस्से का भी बांट देती हूँ। अब मेरे लाल बताओ कितनी देर बगैर खाए रहूंगी? अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजार से गुजर रहे हैं, कसाई ने आते हुए देखा, गोश्त पे कपड़ा डाल दिया। एक खरीदने वाले ने पूछा, तुमने गोश्त छुपा क्यों दिया? कहने लगे, वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो यहाँ खड़े होकर रोएंगे। किसी ने पूछा, आप गोश्त को देख के रोते क्यों आए? फरमाने लगे, करबला में बिखरे हुए गोश्त के टुकड़े याद आ जाते हैं, मुझे कासिम का लाशा याद आ जाता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। एक कसाई जानवर ज़िबह कर रहा था, चंद कदम आगे बढ़ के इमाम ने कहा, तुमने इसे पानी पिला दिया? कहा, मौला मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिलाकर ज़िबह करते हैं। जैसे ही ये जुमला सुना, करबला का रुख करके कहा, बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह करता है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे, गिरिए की हिम्मत अता फरमाए। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मुझे 2 मंजिलें और आगे जाना है। दूसरी मंजिल यानी एक मंजिल से पहले की मंजिल सुनिए। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ देखी आपने? मेरे मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आपने कहाँ देखी? तो एक सर्द आह भरी, एक ठंडी सांस ली और फरमाया, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मेरे मौला ने 3 मरतबा फरमाया शाम। शायद पहली मरतबा फरमाया, शायद पहली मरतबा फरमाया बाजारे शाम। शायद पहली मरतबा का मतलब बाजारे शाम, दूसरी मरतबा कहने का मतलब दरबारे शाम, तीसरी मरतबा कहने का मतलब जिंदाने शाम। अज़ादारों मुझे जल्दी नहीं है, आप थकेंगे नहीं रोने से। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, हक बनता है इस इमाम पर ऐसे ही रोया जाए। और अभी तो मैं हक अदा करने का कोई जमानत नहीं दे सकता। मुझे यकीन नहीं है कि मैं हक अदा कर रहा हूं। बाजारे शाम सुनेंगे क्या फरमाया? फरमाया, हमें बाजारे शाम में ऐसा खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जा। सख्त जुमला है, सख्त जुमला है। फरमाया, एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मेरी बहन सकीना बार बार आवाज लगाती थी, फूफी ज़ैनब। अजर कमल अल्लाह। फरमाया, शाम के बाजार से गुजरते हुए किसी ने अंगारे फेंके। एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा। मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए थे, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। फरमाते हैं हमें जब दरवाज़े दरबार पर पहुंचाया गया, जब दरबार के दरवाजे पर हमें पहुंचाया गया तो मेरी फूफी ज़ैनब ने कहा कि मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी जिस दरबार में शराबी बैठे हो, वहां अली की बेटी खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब का जलाल सामने आया। फरमाया, उसको खामोश हो जाओ। तो जो जहां था वहां रुक गया। जिस जानवर के गले में घंटी बज रही थी वो रुक गई। जिस जानवर के पैर में घुंघरू बंधा हुआ था वो रुक गया। जिस जानवर ने पैर उठाया था वो उठा रह गया। ज़ैनब ने कहा, खामोश हो जाओ।
मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी कि एक मर्तबा मैंने आवाज देकर कहा, फूफी अम्मा आप आलिम गैर मुअल्लिमा है। फूफी अम्मा आपको तो बताया गया था कि दरबार में जाना होगा। फूफी अम्मा जरा बाबा के सर को देखिए। मेरी फूफी ने जब बाबा के सर को देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन ने आवाज देकर कहा, भैया किसने रुलाया है? सरे हुसैन गोया हुआ। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, ज़ैनब दरबार में चली जाओ। फरमाते हैं हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। फरमाते हैं मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर देखा जो मेरी आंखों से जाता नहीं है। एक तश्त लाके रखा गया, उसका रुमाल हटाया गया, मेरे बाबा हुसैन का सर था, यजीद के हाथ में छड़ी थी, मेरे बाबा के लबों पे लगाता था। वो मंजर मुझसे नहीं भूलता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और ज़ैनुल आबिदीन पर जिंदान शाम की मुसीबत। बहुत रो लिया, बहुत गिरिया कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई आंख रह गई हो जिसमें आंसू का कतरा ना आया हो। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो आंसू मांगिए इमाम हुसैन से, इमाम सज्जाद से आंसू मांगिए। और जिंदान शाम जिसकी छत नहीं थी, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं जिसकी छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप पर बुढ़ापा कैसा है, आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए? फरमाने लगे वो रात कैसी रात थी जब मेरी बहन सोते सोते उठी। अजरुकुम अल्लाह, थकेंगे नहीं। कभी जिंदान के उस कोने में जाती थी, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे। कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, फूफी अम्मा भी मेरे बाबा यही थे। कभी दौड़कर किसी और कोने में जाके कहती हैं, आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, वो यही थे। उससे कह रहे थे सकीना तुम्हें लेने आया हूं, मैं बाबा के साथ जा रही हूं, मुझे मेरा बाबा लेने आया है। बच्ची ने हाय बाबा कह के रोना शुरू किया। यजीद के दरबार से सरे हुसैन भेजा गया कि जाओ इस सर को भेज दो, शायद ये बच्ची खामोश हो जाए। जब सर लाके रखा गया और सर से रुमाल हटाया गया, इमाम सज्जाद ने फरमाया सकीना देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए। अपने दोनों हाथों से सर उठाया, लबों पर प्यार किया। बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपका होठ किसने काटा? बाबा आपकी पेशानी में ये जख्म कैसा है? बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरा दामन चला दिया, बाबा मेरे गोश्त मारे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर बच्ची ने बाबा के लबों पे लब रखना शुरू किए, बाबा के रुखसारों पर प्यार करना शुरू किया। बच्ची बोलते बोलते चुप हो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अपनी बहन के नफ्स पर हाथ रखा, आवाज दी फूफी अम्मा जरा अम्मा रबात को संभालो। आवाज दी इन्ना लिल्लाह मिनहाल, मुझे बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अजरुकम अल्लाह। मेरे मौला 36 साल 35 साल तक मदीने में ये मसाइब याद करके रोते रहे, ये मसाइब याद करके तो रोते रहे। हर शाम ने मेरे मौला को जहर दे दिया। ये आपका रोना बर्दाश्त नहीं है ना बहुत से लोगों को। मैं कहता हूं अगर आपको रोना भी ना आ रहा हो तो ऊंची आवाज में रोया करें, इसलिए कि इमाम सज्जाद के रोने ने इमाम को जहर दिलवा दिया। हम न रोते अगर ज़ैनब को रोने दिया गया होता, हम न रोते अगर सकीना को रोने दिया गया होता, हम न रोते अगर इमाम सज्जाद को रोने पे जहर ना मिला होता, हम न रोते अगर जनाबे रबाब को रोने दिया गया होता। मेरे मौला 35 साल तक रोते रहे। इस रोने के जुर्म में मेरे मौला को जहर दे दिया गया। जब जहर का असर हो गया ना ज़दारो, बदन पे असर आने लगा, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर को करीब बुलाया, उमूर इमामत तफवीज़ किए, उमूर इमामत तफवीज़ किए। फरमाने लगे, मोहम्मद बाक़िर मुझे इतना बताओ मेरे लाल, तुम करबला में कितने बरस के थे? कहा बाबा मैं 3 साल का था। मुझे बताओ तुमने करबला में क्या देखा? मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। मोहम्मद बाक़िर मुझे बताओ तुमने करबला में क्या देखा? इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली अकबर का लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा कासिम का पामाल लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन वो अलम दरिया से लेकर आए जो चचा अब्बास लेकर गए थे। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली असगर का लाशा लेकर आए। वो नन्ना सा लाशा दादा हुसैन के हाथ में था। बाबा मैंने देखा खेमे जल रहे थे। बाबा मैंने देखा आपके नीचे से बिस्तर खींचा जा रहा था। सुनेंगे अज़ादारों किस जुमले पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई? वो जुमला सुनेंगे आप हज़रात। मैं इसी पे मजलिस को खत्म कर रहा हूँ। ताबूत अभी आप ज़ियारत करेंगे, ख्याल रहे ये उसका ताबूत है कि जिसके ताबूत को उठाने वाला मदीने में बहुत बड़ा मजमा था। याद रहे कि इसके बाबा का लाशा 3 दिन बेकोरो कफन रहा। ये यही याद कर करके रोता रहा, मेरा बाबा करबला में 3 दिन बेकोरो कफन रहा। जैसे ही इमाम बाक़िर ने कहा बाबा